Hello students, welcome to my channel. In the last lecture we have discussed electric field due to a point charge. But in most of the practical applications, the size of the charged body is very large. So in order to discuss electric field due to the practical objects, we will define here a term which is called as continuous charge distribution. So firstly we will observe that what is the meaning of the continuous charge distribution. Any charged body which has a reasonable size is called as a continuous charge distribution. In case of the objects, continuous charge distributions are classified into the three categories. First is called as linear charge distribution, and second is called as surface charge distribution, and the third is called as volume charge distribution, and the last one is volume charge distribution. In case of these three type of distributions, we have the three different type of objects. Firstly, we will discuss what is the meaning of this linear charge distribution. If charge is distributed on a one-dimensional object, it is called as linear charge distribution. If charge is distributed over the two-dimensional object, I can write down here, this is one-dimensional. And if charge is distributed over the two-dimensional system, so this distribution is called as surface charge distribution. If charge is distributed on the volume, it is called as volume charge distribution. Clear? So now we have the three type of charge distributions, and we will define here a term which is called as charge density. Now we have three type of distributions. It means that we have three type of charge densities. Clear? If charge is distributed on the one-dimensional system, it is called as linear charge density. It is represented by lambda. Similarly, we have surface charge density. It is represented by sigma, and the last one is volume charge density. Volume charge density, and its symbol is rho. Now we will define what is the meaning of the charge distribution and the charge density. Now firstly we will define what is the meaning of this lambda. Lambda is defined as the ratio of charge by length. So the dimensions of lambda are unit of charge is coulomb and the unit of length is meter. It means it has the dimensions of coulomb by meter, means its unit is coulomb by meter. Now in terms of sigma, we have, in this case we have charge by length, so now we will use here charge by area. Clear? In this case, in the surface charge distribution, the units of surface charge density are coulomb by meter square. Now the third one, volume charge density, it is defined as the ratio of charge by volume. So the unit of rho is coulomb per meter cube. Clear? So we have three type of charge densities. This is linear charge density, surface charge density, and the volume charge density. Clear? So now we take one example. Suppose we have a loop of charge . Okay. So now suppose charge is distributed over this wire or in the shape of loop. Let Q charge is distributed on this, and suppose A or R is the radius of the circle.
So what is the meaning for lambda? Lambda is charge by length. So how much charge is there? Q charge is there. And what is the length of this circle? So its length is 2 pi r. So what is the meaning for this loop of charge? So we will define the density for the loop of charge is Q by 2 pi r. Now in case of two-dimensional distribution, suppose we have a sheet of charge and charge is distributed over the surface like this. Let amount of charge is Q. Again the dimensions of the circle are R. So in this case what is sigma? Sigma is charge by area. Charge is how much? Q by area is how much? Pi r square. Clear? So this is what surface charge density. Now in case of volume, suppose we have the three-dimensional object. We have a sphere. We know that spheres are of two types. One is hollow sphere and second one is solid. But we will talk about the volume charge density when the sphere is solid. It means that whole of the sphere is filled with the charge. So now we have solid sphere. This is what? Solid sphere. And charge is distributed inside the body of the sphere. And what is the amount of charge? Charge is Q. Again, let the dimensions of the sphere are smaller. So what is the volume charge density? It is Q by volume of the sphere. Volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. Clear? So in this way we can define linear charge density, surface charge density and the volume charge density. Clear? So now we will discuss how to find out the electric field due to line charge distribution and surface charge distribution, and the third one is volume charge distribution. Now we will discuss how to find out the value of electric field due to a charge distribution. So firstly we take the example of the linear charge distribution. So electric field due to a line charge distribution. तो हमने बच्चों अब क्या करना है, एक हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से कहीं पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो हमने कैसे करना है देखो. सपोज वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम and this is XY plane. A line distribution is present. Let the length of the distribution is capital L. Clear? Suppose charge is distributed on this length L and the amount of charge distributed is Q. Okay? We want to find out the value of electric field at the point P, which is present at the position of r vector from the origin. Now, in order to find out the value of electric field at the point P due to this line distribution, we use a method in this case, because हमने बच्चों पढ़ा क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने अब तक पढ़ा है या कूलम्स लॉ है, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस. बट नाउ दिस इज अ लार्ज ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो हम क्या करेंगे, मेथडोलॉजी इसकी ये है, हमने क्या करना है, एक इसमें लाइन एलिमेंट सेलेक्ट करना है. सो फर्स्ट पॉइंट इज सेलेक्ट अ लाइन एलिमेंट ऑफ length dl. Select a line element of length dl. तो हमने क्या करना है, इसके अंदर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है dl, वो सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है. सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चार्ज दिया है q और लेंथ दी है l.
So we define here what is the linear charge density. So what is the linear charge density? It is charge by length. हमने अभी definition में देखा था. This is charge by length, and charge is how much? Charge is Q and length is what? Capital L. Clear? Now we have selected a very small line element in this structure of the value dl. Okay, अगर हमने ये लाइन एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया जिसकी वैल्यू है, जिसकी लेंथ dl है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ना. सो सपोज चार्ज प्रेजेंट ऑन लाइन एलिमेंट इज dq. तो इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों? dq. हमने अभी अभी देखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी. लैम्बडा इज चार्ज बाय l, चार्ज बाय लेंथ. तो फिर चार्ज क्या हो गया? चार्ज इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू लेंथ. ओके, सो लैम्बडा किसके बराबर है? चार्ज बाय लेंथ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी हमने, चार्ज मारा के बन गया लैम्बडा इनटू लेंथ. क्लियर? सो नाउ अब हमें क्या पता है इस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी कितनी है. मैं लिख देता हूं, लीनियर डेंसिटी कितनी है? लैम्बडा. हमने एलिमेंट कितना सेलेक्ट कर लिया? dl. तो हमें लैम्बडा भी पता है और dl भी हमने सेलेक्ट कर लिया. सो व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट? इट इज लैम्बडा इनटू dl. Okay, so now in this way we have calculated the amount of charge present on this element. यहाँ पे चार्ज बेटा कितना आ गया हमारा? चार्ज is dq. Now this element is very small. हम लिख भी सकते हैं element is very small and it tends to 0. It means that this line element will act like as a point charge. Clear? So now suppose R dash vector is the position of line element from the origin. Now we can find out the value of electric field at the point P. We have studied a method how to find out the value of electric field at the point P due to a point charge. Clear? So its direction will be in this way because this is a positive charge. So the direction of electric field will be outwards. Clear? एक चीज बच्चों आपको यहाँ पे देखनी है, अगर हमने लाइन एलिमेंट dl लिया है, बहुत छोटी लेंथ का लिया है, तो उसकी वजह से चार्ज भी हमारा आया बहुत छोटा सा. अगर चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? छोटा सा. इट मीन्स दैट लेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज dE. So now I will write down the expression of dE which is equal to, हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. अभी हमने लास्ट आर्टिकल में किया था हाउ टू राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म. सो इट्स आंसर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हैं? पी पॉइंट पे. किसकी वजह से? डी क्यू चार्ज की वजह से. तो ऊपर क्या आता है हमारा? चार्ज. सो यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू. क्लियर? और साथ में हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आता है, वो हमने क्या सीखा था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. सो फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है? आर वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है? आर डैश वेक्टर. क्लियर? और नीचे क्या आता है इसका? मॉडुलस एंड उसका क्यूब. क्लियर? So we have this method to write down the value of electric field at the point P, which is at the position of r vector due to a line element, due to a charge dq, which is situated at the position vector r dash vector. Clear? Now, अब हमने क्या करना है? हमारे पास क्या आया? इस लाइन एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. हमने क्या करना है? सारी लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? एट द पॉइंट P, which is equal to the integration. देखो हमारे पास दो मेथड होते हैं. अगर हम क्या करें, हमें कोई लाइन एलिमेंट, लाइन ऑब्जेक्ट दिया है, हम उसके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस कर सकते हैं. हर एक छोटे पोर्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और बाद में उनका क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे. पर हमने क्या किया है? लाइन एलिमेंट सेलेक्ट तो किया है, बट उसका साइज क्या ले लिया? बहुत छोटा ले लिया. अगर साइज बहुत छोटा हो जाए लाइन एलिमेंट का, तो समेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा,
it will convert into the integration. So मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, समेशन की बजाय यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया. क्लियर? किस चीज का इंटीग्रेशन? DE का इंटीग्रेशन. ओके, सो DE की वैल्यू रख देते हैं. व्हाट इज द वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq into r vector minus r dash vector divided by r vector minus r dash vector raised to power 3. Now we will put here the value of dq. What is our dq? dq is, हमने अभी अभी लिखा है, dq हमारा क्या है? लैम्बडा इंटू dl. So what will be the answer? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देखो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि ये कांस्टेंट है. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा dl, मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, इनटू r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर माइनस r डैश मोड q. सो ये बच्चों हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया. किस चीज का आंसर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट p विच इज एट द पोजिशन वेक्टर r वेक्टर ड्यू टू अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? सो इस तरह से ये हमने करना है. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं. अब हमारे पास क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी है. हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं कोई पॉइंट पे जो कि पोजीशन वेक्टर r पे पड़ी है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो कैसे करना है देखो हम. सो हमारे पास अब कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई सरफेस है जिसकी मात्रा कितनी है? कैपिटल S. चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है. सो नाउ वी हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ओके, सो नाउ लेट द चार्ज इज Q. नाउ जैसे हमने लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहले एक लाइन एलिमेंट लिया था, तो बच्चों मेथडोलॉजी इसकी भी 100% सेम है. उसमें हमने लाइन एलिमेंट सेलेक्ट किया था, इसमें हम सरफेस एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे. क्लियर? तो हमने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा कोई ds अमाउंट का सरफेस एरिया सेलेक्ट कर लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है? r डैश वेक्टर. क्लियर? मेथडोलॉजी बिल्कुल सेम रहेगी, जैसे हमने लाइन डिस्ट्रीब्यूशन किया था वैसे ही हम सरफेस और सेम हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे. क्लियर? सो अगर यहाँ पे सरफेस एरिया एलिमेंट ds है, सपोज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वो हम निकाल सकते हैं. सिग्मा हम कैसे निकालते हैं? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. चार्ज कितना है बेटा? Q है. सरफेस एरिया कितना है? कैपिटल S है. तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई? Q/S. यहाँ पे लिख भी देते हैं हम. क्लियर? सो नाउ अगर हमें सरफेस, सॉरी यहाँ पे Q आएगा. ओके, सो नाउ अगर हमें स्मॉल एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ छोटा सा चार्ज भी होगा. सो चार्ज कितना होगा हमें पता है डेफिनेशन में. सिग्मा किसके इक्वल है? चार्ज बाय एरिया. और चार्ज निकालना है तो क्या आएगा? सिग्मा इंटू एरिया. सो स्मॉल चार्ज dq on the small area element ds is given by sigma into ds. It means that this small area element has the charge. कितना आएगा इसके ऊपर चार्ज? dq. अब हमें चार्ज भी पता लग गया, उसकी पोजीशन वेक्टर भी पता लगी, तो हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारे पास ये चार्ज जो है बहुत छोटा होना चाहिए, बिकॉज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है? चार्ज मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज. क्लियर? तो हमने ds इस तरह सेलेक्ट किया है कि उसकी वैल्यू बिल्कुल टेंड्स टू 0 होगी. अगर ds इज वेरी स्मॉल, अगर ds बहुत छोटा है तो चार्ज भी हमारा क्या होगा? बहुत छोटा होगा. क्लियर? सो नाउ लेट dE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज dq. तो आएगा कितना? ओके, सो लिखते हैं हम उसकी वैल्यू dE वेक्टर विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सेम मेथड यूज करेंगे बेटा जैसे हमने पिछली बार यूज किया था. सो व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज dq. पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. नीचे क्या आएगा? उसका मॉडुलस और उसका q. क्लियर? सो नाउ
पिछले बार भी सेम ही फॉर्मुलेशन आया था, बस बाद में हमने जब डी क्यू की वैल्यू पुट की थी तब वो इक्वेशन चेंज हो गई थी. सो नाउ सिमिलरली वी हैव डी क्यू इज नाउ व्हाट, डी क्यू हमारा इस बार क्या है, सिग्मा डी एस. सिग्मा डी एस आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर मॉड क्यू. क्लियर. नाउ ये हमारा क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसकी वजह से, डी क्यू चार्ज की वजह से. बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरी बॉडी की वजह से. तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका इंटीग्रेट कर देंगे. क्लियर. इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा. सो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा डी एस आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर मॉड क्यू. ठीक है. अगर आप देखो लास्ट टाइम लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में आया था हमारा लैम्डा इंटू डी एल, इसमें क्या है, सिग्मा इंटू डी एस. सो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया. अगर हम थर्ड वाला ना करें तो मैं डायरेक्ट सीधा रिलेशन लिखूंगा. इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी वही सेम आ रहा है. सो उसमें आया था लैम्डा डी एल, इसमें आया सिग्मा डी एस. तो इसमें क्या आएगा, रो डी वी. उसमें भी बाकी सारी टर्म सेम है तो इसमें भी बाकी सारी टर्म सेम रहेगी. सो इस तरह बच्चों हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसकी वजह से, ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज. नाउ ये +2 के एग्जाम्स में, सीबीएसई के, बाकी अदर स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत आता है. ठीक है. सो आप इसको ध्यान से करिए. सो नाउ व्हाट वी हैव गिवन, we have a circular loop of charge. Suppose its radius is a and charge is distributed over the length of this circular loop. Let charge distribution कितनी है, Q है. अगर इस तरह की लूप के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज जस्ट लाइक अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर. सो नाउ हमने इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ये हमारा कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है. सपोज ये सेंटर है लूप का और इसका इससे डिस्टेंस कितना है, हम x ले लेते हैं. ठीक है. सो नाउ हमारे पास स्टेटमेंट किस तरह की है, वी हैव अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज विद इट्स रेडियस स्मॉल a. लेट q इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कुलर लूप एंड वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट p which is at a distance x from the center of the loop. क्लियर. सो हमने इसको कैसे करना है तो हम देखते हैं. जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के भी आर्टिकल्स किए हैं, उसमें हमने क्या देखा, अगर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन दी है तो हम डायरेक्ट जो कूलम्स लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुलेशन पढ़ा था वो हम नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है. क्लियर. सो फर्स्टली select a line element of length dl on the circular loop. ठीक है. हमने लाइन एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया जिसकी लेंथ बेटा कितनी है, हमने लिख दिया लेंथ कितनी है, dl लेंथ है. ठीक है. अगर इस चार्ज बॉडी के ऊपर जिसकी लेंथ कितनी होगी, अब देखो ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया. सरकमफ्रेंस कितना हो गया, अगर रेडियस a दिया है तो सरकमफ्रेंस इज 2 पाई a. चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q. तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, हम डिफाइन कर लेते हैं. लीनियर चार्ज
density which is lambda equal to which is defined as the ratio of charge by length. चार्ज कितना है बेटा, Q है, लेंथ कितनी है 2 पाई a, क्योंकि ये क्या हो गया सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है, फॉर द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ अगर ये हमने लाइन एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा. सो चार्ज कितना हमने सपोज कर लिया, लेट द चार्ज इज डी क्यू. तो चार्ज होगा कितना, हमने अभी अभी फॉर्मुलेशन पढ़ी थी, चार्ज कितना होता है लैम्बडा इनटू लेंथ. ठीक है जी, यहां से भी निकाल सकते हैं सिंपल. सो व्हाट इज लैम्बडा, लैम्बडा इज चार्ज बाय लेंथ. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चार्ज हमारा कितना आ गया लैम्बडा इनटू लेंथ. क्लियर. सो चार्ज हमने सपोज कर लिया डी क्यू, ये हमारी लैम्बडा होगी और लेंथ इसकी कितनी है डीएल. तो हमने यहाँ पे डीएल लिख देते हैं, ठीक है. सो दिस इज लैम्बडा डीएल. ओके. सो नाउ if dq charge is present on this line element, definitely we can have small value of electric field at the point P due to this small charge dq. Then P point पे क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा. अगर लाइन एलिमेंट हमने छोटा सा लिया है तो चार्ज भी छोटा सा है, अगर चार्ज छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बहुत छोटा होगा. क्लियर. सो नाउ मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ. What is the formula for the electric field? 1/4 pi epsilon naught. हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 pi epsilon naught Q by R square. What is the R? Distance between charge and the observation point. Now we will use this formulation 1/4 pi epsilon naught. चार्ज कितना है बेटा हमारा dq. And what is the distance of separation between the charge and the observation point? यहाँ पे आप एक कोई नाम सपोज कर लो, सपोज द नेम इज m. क्लियर. दिस लाइन एलिमेंट इज ml. ठीक है, mn इसका क्या हो गया नाम हो गया. ठीक है. सो इसका कोई सेंटर भी आप सपोज कर सकते हो n. ठीक है, मतलब हमने लाइन एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया dl लेंथ का, जिसका नाम हमने दे दिया mn. क्लियर. तो यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस लगाना है. तो ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं, तो ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है रेडियस, और ये वाला डिस्टेंस दिया है. तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर. सो नाउ व्हाट वी हैव, दिस डिस्टेंस, इसको चाहे mp लिख लो चाहे np लिख लो, सेम ही है. सो mp स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस स्क्वायर mo स्क्वायर प्लस op स्क्वायर. चाहे तो आप इसके सेंटर में से भी ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस लाइन एलिमेंट इज वेरी स्मॉल एंड द लेंथ ऑफ mn टेंड्स टू 0. इतना छोटा लिया है हमने कि इसकी लेंथ 0 के आसपास है. ठीक है, जस्ट अप्रोचिंग टू 0, नॉट 0 बट. सो नाउ व्हाट वी हैव, व्हाट इज mp स्क्वायर इज mo इज योर a स्क्वायर, mo स्क्वायर इज a square plus what is OP x square. So we have this distance is what a square plus x square. Clear. अब वैल्यू रख देते हैं dq की. वैल्यू हमारी कितनी है dq की, lambda dl 1/4 pi epsilon naught lambda dl by a square plus x square. Clear. तो हमने क्या किया, इस चार्ज dq की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया. कितना आ गया बेटा, वो dE आ गया. ठीक है. सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इस dE इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स ले लेंगे. एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया. सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी कितना बन गया थीटा. और dE का ये वाला कंपोनेंट किस डायरेक्शन में ले लिया, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये हमारी क्या होगी वर्टिकल डायरेक्शन. तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सा हो गया बेटा वर्टिकल कंपोनेंट. क्लियर. तो अब हम इसको देखेंगे कैसे करना है. देखो ये सर्कल है, ऐसे हमने यहाँ पे कोई mn कंपोनेंट सेलेक्ट किया है. ठीक है. अगर हम सर्कल की स्ट्रक्चर देखें तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा. ठीक है. सपोज
यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। वो इस तरह से होगा। सपोज आप उसका भी कोई नाम ले लो, ये हमने dl लेंथ ले लिया और ये भी हम dl लेंथ ले सकते हैं, इसकी भी लेंथ dl होगी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी dE इस तरफ होगा। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग x डायरेक्शन और दूसरा किस तरफ कोई y कंपोनेंट होगा। अगर हम सभी जो लाइन एलिमेंट्स हैं सेम लेंथ के ले लें तो जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये होगी और जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे DE है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में DE होगा। और अगर ये एंगल थीटा है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से, ये भी एंगल थीटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट वो दोनों एक दूसरे में किस डायरेक्शन में, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स तो क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। सिर्फ बच कौन रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, इस सर्कुलर लूप के जो हमारे पास लाइन एलिमेंट्स बनेंगे उन सबके डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनका हम समेशन ले लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, तो वो क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ले लिया, नेक्स्ट वाले लाइन एलिमेंट का उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया। तो इस तरह इस सर्कुलर लूप के ऊपर जितने भी हमारे पास लाइन कंपोनेंट्स बनेंगे, लाइन एलिमेंट्स बनेंगे, उन सबके हमने क्या ले लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ले लिए। तो वो कितना आएगा, वो होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ DEX। नाउ व्हाट इज दिस DEX, वी नो दैट अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर है A तो इसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में जिधर एंगल थीटा बन रहा हो तो वो कितना होता है, A cos थीटा। अगर ये वाला कंपोनेंट DE है तो DEX, क्योंकि इस डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। सो ये कितना होगा बेटा हमारा, DEX होगा DE cos ऑफ थीटा। सो वी विल यूज नाउ दिस प्रॉपर्टी। सो ये हमारा कितना होगा, DE cos ऑफ थीटा। यहाँ पे हम D की वैल्यू रख देते हैं और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया, कहाँ पे, एट पॉइंट P, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE। DE बेटा हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा DL बाई E स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। नाउ cos थीटा निकालते हैं, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल O, ये हमारा क्या था, P पॉइंट था, OPM। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। सो व्हाट इज अवर cos थीटा, cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस एंड दिस इज x by this length MP, which we have already written. This length is how much, A square plus X square raised to power 1/2। Clear? So how, अब हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा, x over A square plus X square raised to power 1/2। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्या बनेगा। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विच इज इक्वल टू, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, लैम्डा, लैम्डा भी हमने डिफाइन कर रखा है, दिस इज हाउ मच, Q/2 पाई A। चार्ज ऑन द लूप इज कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द लूप इज कांस्टेंट, तो ये हमारा लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, तो इसको भी हम बाहर ले सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय। नाउ
यहाँ पे क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, ठीक है। ए कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो ये सारी टर्म भी हमारी क्या है, कांस्टेंट, तो इसको भी बाहर ले जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, और ये एक्स पोजीशन पी की फिक्स है तो एक्स भी कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ हमारे पास अंदर बचा डीएल, ठीक है। डीएल हमने क्या लिया था, डीएल हमने ये लाइन एलिमेंट लिया था। फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज था, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा एलिमेंट mn लिया था, दैट इज अवर लाइन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। अगर हम इस तरह के छोटे छोटे dl लाइन एलिमेंट्स को जोड़ देंगे पूरे सर्कुलर लूप के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस dl is how much, it is circumference। तो ये सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, 2πa, और ये हम साइड में लिख देते हैं। व्हाट वी हैव रिटन, वी हैव यूज्ड दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस लाइन एलिमेंट dl ओवर द सर्कुलर लूप इज हाउ मच, 2πa। तो हमने ये वैल्यू यूज कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा हमारा आंसर क्या आ गया, E at the point P is how much, this is 1/4 epsilon naught। ये हमारे पास लैम्डा, ये हमारे पास 2πa। तो हमारे पास फ्रॉम दिस इक्वेशन लैम्डा इंटू 2πa, इसको क्या लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है, हमने लिखा है ऊपर देखो, लैम्डा इंटू 2πa विच इज इक्वल टू क्यू। सो ये हमारा बन गया क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। एक चीज इसमें आपने याद रखनी है, हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हर एक एलिमेंट के ऑपोजिट जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए हमने सिर्फ इसका कौन सा कंपोनेंट कंसिडर किया है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो नाउ तो इसमें हम एक सब केस भी ले लेते हैं। इफ x is 0 means observation point is at the center of loop। हमने क्या लिया, x को ले लिया 0। अगर हमारे पास किसी प्रॉब्लम में ऐसा आ जाए x हमारा 0 है, इसका मतलब x हमारा क्या था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का डिस्टेंस था फ्रॉम द सेंटर। अगर ये पॉइंट चल के यहाँ आ जाए तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कहाँ पे करना है, एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो सीधा ही हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, it will be 0। क्लियर। सो नाउ ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप कर लेना, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जो भी हमने फॉर्मुलेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्लोज्ड सर्कुलर लूप, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a circular loop of charge। लैम्डा उसका दिया हमें 70 कूलम पर मीटर at the distance of 30 centimeter from the center of the loop radius of loop is 5 मिलीमीटर। क्लियर। तो बच्चों हमें इस तरह की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से, सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है। तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दी है,
तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है उन्होंने 70 कूलम पर मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना का है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, और रेडियस लूप का क्या दिया है 5 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। सपोज दिस इज सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, इसका रेडियस उन्होंने कितना दिया हमें, इसको a ले लेते हैं और साइड में इसकी वैल्यू लिख देते हैं। a कितना दिया है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P हो गया जैसे हमने आर्टिकल में किया था। तो ये इसका डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, लेट द पोजीशन इज x फ्रॉम द सेंटर, और x की वैल्यू कितनी दी है बेटा 30 सेंटीमीटर, which means that 30 into 10⁻² मीटर, ओके। Now what we have, लैम्बडा उन्होंने क्या दिया है हमें, लैम्बडा इज 70 कूलम पर मीटर, एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द पॉइंट P। हमने अभी फॉर्मुलेशन किया था, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुलेशन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2। 1/4 पाई एप्सिलॉन हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू है, x उन्होंने दे दिया, a दे दिया, तो ये चीज़ें भी निकल जाएंगी इजीली। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q क्या होता है बेटा, Q बच्चों चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो चार्ज हम कैसे निकालते हैं, लैम्बडा उन्होंने दिया है, लैम्बडा क्या है हमारा चार्ज बाय लेंथ, तो चार्ज हमारा क्या आ गया लैम्बडा इंटू लेंथ। लैम्बडा बेटा कितना है 70 कूलम पर मीटर, ये उन्होंने दिया हुआ है। और इस सर्कुलर लूप की लेंथ कितनी होती है, अगर उन्होंने रेडियस हमें दे दिया a, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई a। सो वी हैव चार्ज इज हाउ मच 2 पाई a। सो चार्ज कितना है बेटा 70 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू ए हमारा कितना है 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10⁻³ क्लियर। तो इसको निकाल लेते हैं, क्या हमारा कितना आएगा, ये 7 कैंसिल हो गया 10, तो हमारा बना ये 44 इंटू 5 इंटू 10⁻², 44 इंटू 5 10⁻², और ये हमारा बना कितना 220 इंटू 10⁻²। तो चार्ज हमारा बेटा कितना बना 2.2 कूलम। तो हमने क्या किया, हमने चार्ज निकाल लिया और चार्ज की वैल्यू हमारी कितनी आई 2.2 कूलम, ओके। सो चार्ज हमने निकाल लिया, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2.2 कूलम, ओके। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन। एक चीज़ हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो देखेंगे, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसकी वैल्यू हमें दी है 30 इंटू 10⁻² मीटर। अगर हम इसको -3 की फॉर्म में लिखें या इसको -2 की फॉर्म में लिखें, तो ये बन जाएगा हमारा 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। Means the value of x is very large in comparison to a। तो यहाँ पे हम आप चाहो तो इसको एग्जैक्ट वैल्यूज लेके भी फिल कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम एक स्पेशल केस कर लेते हैं, तो वो क्या है, इफ x is very large in comparison to a, then a square plus x square is approximately equal to x square। तो ये हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं बच्चों, अगर x बहुत ज़्यादा लार्ज है किसके बजाय a की बजाय, ठीक है, तो हम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है
अगर x a से बहुत ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर तो a स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, a स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों का सम हम अप्रॉक्सीमेटली x स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा फॉर्मुलेशन क्या बन जाएगा, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x बाई एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा बना क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स क्यूब, और आंसर हमारा क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुलेशन का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम वैल्यूज रख देते हैं सभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, दिस वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज हमारा कितना आ गया, 2.2 कूलम डिवाइडेड बाय व्हाट इज एक्स, एक्स हमारा कितना था उन्होंने दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 सॉरी 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। क्लियर। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आया 9, 2.2 इंटू 10⁻⁹, और नीचे हमारा क्या बना, ये बना 900 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। और ये 10⁻2 है, ये 10⁻⁻4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, 9 इंटू 2.2 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर, ये 10⁻2, ये 10⁻⁻4, तो ये बन के आ गया हमारा 10⁻2। 9 से कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारा 2.2 इंटू 10⁻+11। क्लियर। तो यूनिट क्या है बेटा इसका, न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन होगी इसकी अलोंग द हॉरिजॉन्टल। क्लियर। सो डायरेक्शन भी लिख देते हैं। अगर ये वाला पॉइंट O है तो डायरेक्शन इज फ्रॉम O टू P, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बाकी आप अपनी बुक्स में से ट्राई करो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। थैंक यू।